So again, good morning everyone. This is Anil Kumar Singh, your computer teacher, with the new segments of the networking concept which I have told you in the last video, where I have discussed the 3 points with you: the introduction, the mode of transmission, and the types of network. So these topics we have already discussed in the last video. So today I am going to tell you about the new segment which is related with the 2 points. Today I am only discuss 2 points because I don't want to make you bother or make you uncomfortable with the videos, because if there is so many points, maybe it possible you cannot understand. So here I am going to tell you only 2 points today. First one is topologies, and second point is networking devices. Networking devices. Okay, these 2 points are very important according to the concept. So I will tell you in detail the points topology and networking devices. Basically everyone knows what the topology is and what the networking device is. I will make you clear. Firstly, topologies. So we can say the structure of the networking concepts in the earlier age is called topology. Okay, जो स्ट्रक्चर था अर्लियर एज में, यानी कह सकते हैं जब स्टार्टिंग में नेटवर्किंग आई होगी तो स्टार्टिंग एज में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उन्हें टोपोलॉजीज कहा जाता है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवाइसेस विच इज कनेक्ट द नेटवर्क विच मेक एन एनवायरमेंट in respect to the networking is called networking devices. So here I am going to tell you, starting with the first point, topologies. So basically you know how many types of topologies are there. So here I am going to tell you the types of topologies. First one, star. Second one, bus. Third one, ring. Fourth one, tree. And the best one topology is called mesh. Okay, so these are the topologies type: ring, star, bus, tree and mesh. Like the name of the topologies, the working of the same like their structure. So here I am going to start the first point. First one is bus topology. If we are talking about the bus topologies, multiple system, when the multiple system connect with the single wire like this. This is the single wire and there are multiple systems are connected. For the different task is called the bus topologies. अगर मैं बात करूं एक सिंगल वायर पे जब बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ये हमारी बस टोपोलॉजीज कहती है. बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में. जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो बस में ट्रैवल करते समय जब सारी सीट्स फुल हो जाती हैं तो ऊपर एक रॉड लगी होती है. उस रॉड में कुछ ऐसे ही हैंडल होते हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो, और ये हैंडल कनेक्ट होते हैं एक सिंगल रॉड से. तो वो जो सिंगल रॉड है वो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के लिए एक सिंगल वायर है जहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स को जोड़ा गया है. ये कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकते हैं, ये कंप्यूटर भी हो सकते हैं, ये प्रिंटर भी हो सकता है, ये स्कैनर भी हो सकता है, या कोई और डिवाइस. ठीक है, डिवाइसेस विच इज कनेक्ट इन द network. So in the single wire when we connect the different devices is called the bus topologies. फायदा क्या है कि हम लोग एक सिंगल डिवाइसेस पे मल्टीपल सिस्टम को जोड़ सकते हैं. ड्रॉबैक्स क्या है? If the wire is not working, if the wire is blast or can say burn, so all the system will be destroyed. Can say कि there is no work in this topology if the single wire is disconnected. And the second drawback is data security. Data will move like this. So every system has the first system data. So data security is
ऑलमोस्ट जीरो. दैट्स वाई दीज टोपोलॉजीज आर यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम्स. काफ़ी टाइम पहले यूज़ की जाती थी. नाउअडेज दीज टोपोलॉजीज इज ऑलमोस्ट एंडेड. कहीं इस्तेमाल नहीं की जाती है. ये टोपोलॉजी अगर आप लोगों ने देखा भी होगा तो कहीं ना कहीं हमारे घरों में अगर सिंगल वायर कनेक्टेड मॉडेम है तो उसी पे मल्टीपल सिस्टम, या तो आप लोग कैफ़े वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम जोड़ दिए जाते हैं वाईफाई से नहीं, विद द हेल्प ऑफ वायर, तो वो आपकी बस टोपोलॉजी इसमें आती है. ओके. सेकेंड, स्टार टोपोलॉजी. लाइक द स्टार, मतलब यहां पे स्ट्रक्चर कोई स्टार की तरह नहीं है. इन बिटवीन अ सिंगल हब एंड मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड और ऑथेंटिक विद दिस हब. ओके, 1 2 3 4 5 6. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि एक जो सिंगल हब है, या कह सकते हैं ये जो सिंगल सर्वर है, इससे जब बहुत सारे सिस्टम को जोड़ दिया जाता है अलग अलग, जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो पर इन सब का कनेक्शन हब की हेल्प से हो रहा हो, तो इट इज कॉल्ड द स्टार टोपोलॉजी. फायदा ये है कि एक साथ बहुत सारे सिस्टम एक सिंगल हब को एक्सेस कर सकते हैं, या एक सिंगल हब बहुत सारे सिस्टम को डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. व्हाट इज द ड्रॉबैक? इफ द हब इज डिस्ट्रॉयड then all the system are just for nothing. It is not in use because all the data which is secured in hub is not working now. Second problem is that if system 3 wants to transfer his data to system 6, so every time he needs permission to hub, or can say to transfer data from this device. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि हब इतना फ्री हो कि आपका डेटा आगे ट्रांसमिट कर सके. तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेटा की ऑन गोइंग स्पीड है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज द ड्रॉबैक. नेक्स्ट वन की हम लोग बात करें, रिंग टोपोलॉजी. ओके, रिंग टोपोलॉजी. दिस इज अ system connected with the next one, connected with the next one, connected with the next one, and connected. This is your ring topology where all the system are connected in a circular way and one system is connected at least 2 systems. Okay, it is very easy to make this structure because only system has to connected with 2 system, next system has to connected with the next system, and last system is already connected. तो कहीं ना कहीं इस टोपोलॉजी को इस्टेब्लिश करना तो बहुत आसान है, पर यहाँ पे डेटा मूवमेंट बहुत मुश्किल से होता है. भाई अपने पास के दोनों सिस्टम को ये डेटा भेज सकता है, इट इज़ वेरी इजी, बट इफ़ ही वांट टू सेंड हिज डेटा फ्रॉम हियर टू हियर, सो ही हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम these 2 devices. If these devices give the permission, then data will be forwarded. Otherwise data will be go into the dead block position. It means आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है, आपका डेटा कहीं खो सकता है, आपका डेटा आगे नहीं जाएगा, तो आपकी वर्किंग रुक सकती है. तो ये टोपोलॉजी अपने टाइम में सबसे कहीं ना कहीं खराब टोपोलॉजी मानी जाती है. ठीक है, सो दिस इज योर रिंग टोपोलॉजी. ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, और ऑल द टोपोलॉजीज, अगर मैं एक सिंगल लाइन में कहूँ, ऑल द टोपोलॉजीज आर रिलेटेड टू LAN. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द LAN, लोकल एरिया नेटवर्क. तो ये जो टोपोलॉजीज यूज की जा रही है ना, ये सारी की सारी जो टोपोलॉजीज हैं वो LAN के अंडर में ही आती हैं, बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में इतनी वायर्स कोई लगाएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है. वायरलेस वैन में तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे आप लोग वायर्स बिछाएंगे. ठीक है, दैट्स वाई. नेक्स्ट वन विच इज वेरी क्रिटिकल इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी, where a single device uses 2 devices, then these 2 devices uses the 2 devices or 3 devices like a chain. Okay, this is your tree topologies where it is your server, or can say the main system, then mini servers, then these are the systems
system, and after that the devices, other devices. ओके तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एक बिजनेस स्ट्रक्चर भी है, जहाँ पे एक हाईएस्ट लेवल पे एक GM बैठा हुआ है, उसने अपने अंडर 2 मैनेजर्स रखे हुए हैं, फिर कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, फिर नीचे सुपरवाइजर्स हैं, फिर उसके नीचे वर्कर्स हैं. प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक बाबूजी हैं, ठीक है, इन बाबूजी की 2 औलादें हैं, देयर 2 sons ऑफ द सिंगल पर्सन, हो सकते हैं, कोई बात नहीं. हर एक सन को उसने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, कोई बात नहीं. इस सन ने 3 बिजनेस ओपन किए, इस वाले सन ने 2 बिजनेस ओपन किए, ठीक है. नेटवर्किंग चली आ रही है, सबके पास प्रॉपर डेटा मेंटेन हो रहा है अभी तक, ठीक है. खुदा ना खास्ता क्योंकि यहाँ से सर्वर सिर्फ इसका डेटा मेंटेन कर पा रहा है, आगे वाले सर्वर से आगे वाले सिस्टम से क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है. खुदा ना खास्ता ये सड़क पे घूमने निकले थे, निकल गए. अब निकल गए तो इनका जो बाकी का कुनबा है, जो नीचे वाला कुनबा है, ये क्या हो गया? अनाथ. अब बताओ इनका संरक्षण कहाँ से करा जाए? तो इन्होंने क्या किया, एक सौतेले पिताजी का अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है. तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा सर्वर यहाँ पे लगा दिया. बट अब ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं या सारे के सारे जो लोग इसके अंडर काम कर रहे थे, वो दोबारा से अपना डेटा इस पे फीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये जो ट्री टोपोलॉजी थी, अगर इसका ये फेल होने वाला चांस नहीं होता तो बहुत अच्छी थी. अदरवाइज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू इंसर्ट और डिलीट द नोड, क्योंकि ये सारे के सारे जो आपको सर्वर्स या ये दिखाई दे रहे हैं, इन्हें नोड्स कहा जाता है. नोड्स मीन्स सिस्टम. वो सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, वो सिस्टम आपकी कोई नेटवर्किंग डिवाइस भी हो सकती है, वो सिस्टम आपका प्रिंटर स्कैनर भी हो सकता है. ओके, तो कहीं ना कहीं इंसर्ट करना और डिलीट करना, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था ट्री टोपोलॉजी में. इसीलिए जितनी फास्ट ये आई उतनी ही फास्ट मार्केट से गायब भी हो गई थी. इसी के जस्ट बाद आपके वायरलेस डिवाइसेस या जिसे आप लोग मॉडेम्स कहते हो, वो सारे के सारे मार्केट में आ गए थे. एट लास्ट हम लोग बात करेंगे उस टोपोलॉजी की जो अपने टाइम की बेस्ट टोपोलॉजी थी, क्योंकि उसमें डेटा लॉस्ट होने के चांसेस लगभग 0% थे, ठीक है. एंड दिस इज द mesh topology. Okay, this one is the mesh topology. Here I am going to show you the structure of the mesh topology. Like this is your first device, this is your second device, this is your third device, this is your fourth device, and this is your fifth device. So structure is that this and this. Okay, this. All devices are connected to each other like this. So this is the structure of the mesh topology, where every device is connected to each other. There is no boundation to send or receive the data from the another device which is available in the same network. Okay, तो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो सारी की सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स. ठीक है, उस टाइम पे वायरलेस नहीं था, दैट्स वाई द वायर्स आर कनेक्टेड ऑल द डिवाइसेस. प्रॉफिट सब था, क्योंकि डेटा का मूवमेंट की अगर बात करें तो बाय द वे अगर एक आध वायर काम नहीं भी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस वायर इज नॉट वर्किंग, सो देयर आर मल्टीपल वेज टू सेंड द डेटा. मान लीजिए इस वाली डिवाइस को यहाँ पे डेटा भेजना है, तो इट डजेंट मैटर कि वो डायरेक्टली ही भेजे, वो इसको भी रिक्वेस्ट कर सकता है, इसके थ्रू वो डेटा भेज दे, वो इसको भी रिक्वेस्ट कर सकता है, इसके थ्रू डेटा भेज दे, वो इसको भी रिक्वेस्ट कर सकता है. उसके पास अब 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ही कैन सेंड द डेटा विद द 3 ऑप्शंस. जो भी सबसे पहले फ्री होगा वो इसके डेटा को आगे मूव करा देगा. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट यूज्ड टोपोलॉजी एट दिस टाइम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज में थी और सब जगह डेटा को मूवमेंट बहुत फास्ट करती थी. पर इसका एक प्रॉब्लम था. व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. देयर आर 5 डिवाइसेस and each device has 1 2 3 4 वायर. इट मीन्स सिर्फ 5 डिवाइसेस को 4 वायर की रिक्वायरमेंट है. इट मीन्स 20 वायर्स. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बिल्डिंग एंड आई हैव 100 सिस्टम.
ओके, नॉर्मली है, एक कंपनी में 100 सिस्टम हो सकते हैं एंड ईच सिस्टम हैज़ 99 वायर्स, क्योंकि 5 सिस्टम थे तो 4 वायर्स रिक्वायर्ड थी, एक कम, क्योंकि अपने आप से कनेक्टेड तो नहीं रहेगा ना भाई, आप लोग हो, सबसे बात कर सकते हो, अपने आप से बात करते हो, क्योंकि जो अपने आप से बात करते हैं उन्हें लोग या तो बहुत ज़्यादा महान कहते हैं या पागल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 100 सिस्टम है, 99 वायर्स हैं, तो कितना हो गया 99 वायर्स। इट मीन्स कहीं पे अगर ये सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया जाए तो ज़मीन पे आपको ब्लैक ब्लैक वायर्स यानी सांप जैसी वायर्स सिर्फ दिखाई देंगी। दैट्स वाई ये छोटे स्ट्रक्चर के लिए तो बहुत बेनिफिशियल थी, पर बड़े स्ट्रक्चर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। सो दीज आर द टोपोलॉजीज टाइप्स विच वॉज अवेलेबल एट दिस टाइम। नाउअडेज द टोपोलॉजीज आर ऑलमोस्ट फिनिश। बहुत छोटी छोटी जगह जहाँ पे बहुत फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे इन टोपोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम आपकी बस और रिंग नहीं स्टार, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द टोपोलॉजीज। एट लास्ट एक टोपोलॉजी का टाइप नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं बिकॉज यू नो एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर टोपोलॉजीज। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। ओके, कहीं पे अगर आप नाम सुन लो कि सर ये हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, तो कुछ अलग नहीं होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 टोपोलॉजीज। ओके, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। इट मीन्स रिंग प्लस स्टार, ये भी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। स्टार प्लस बस, ये भी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। बस प्लस मैश, ये भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन होता है, अब इसके साथ आप तीसरा भी जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ बस आ सकता है, यहाँ पे मैश आ सकता है, यहाँ पे ट्री आ सकता है। ठीक है, तो दीज कॉम्बिनेशन ऑलवेज कॉल्ड द हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, तो कुछ अलग नहीं है, जहाँ पे एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज का इस्तेमाल कर लिया जाए, it is called the hybrid topologies. Clear? So going for the next topic in networking, that is networking devices. Now we are going to talk about the networking devices, which is most important part of networking. Okay, devices. बेसिकली मोस्ट कॉमन डिवाइसेज इन द नेटवर्किंग इज कॉल्ड द मॉडेम, जो कि आप सबने बहुत बार सुना होगा। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मॉडेम। नेक्स्ट राउटर, नेक्स्ट रिपीटर, नेक्स्ट स्विचेस, next bridges, next hub, next gateway. Okay, these are the networking devices. Basically आपने इसमें बहुत सारे के नाम सुन भी रखे होंगे, but here I am going to tell you the description, the mini description of these devices. Starting with the first one, if we are talking about the modem is the devices, वो आपके जो डेटा है उसे मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। अब इस डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट का मतलब क्या है? जो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके आपके पास भेजता है और आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजने की तैयारी करता है, या आपके सिस्टम से भेजने के बाद वो नेटवर्क में उसे भेज देता है, यही कहलाता है आपका मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके सिस्टम में डेटा को लाने का काम करती है आपकी लैंग्वेज में, और आपका डेटा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वापस भेज देती है। इट इज कॉल्ड द मॉडेम। नेक्स्ट वन इज वी आर टॉकिंग अबाउट द राउटर। राउटर इज द डिवाइसेज हु गिव द बेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप शाहगंज पहुंचे। शाहगंज पहुंचने के बाद जैसे ही आपने शाहगंज के स्टार्टिंग में पहुंचे, जैसे ही आप शाहगंज में एंटर कर रहे थे, देयर इज अ क्रॉसिंग। ओके,
अब वो क्रॉसिंग पॉइंट पहुंचने के बाद इफ यू आर न्यू, यू डोंट नो हाउ टू मूव फ्रॉम साहागंज टू जौनपुर विद द नेक्स्ट वे, विद द बेस्ट पॉसिबल पाथ। तो जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है वो उस समय कौन बताएगा? एक पुलिस वाला। बेसिकली पुलिस वालों का काम यही होता है कि वो आप लोगों की हेल्प करें, और करते भी हैं नॉर्मली। तो जो राउटर होता है वो आपको बेस्ट पाथ बताता है। जैसे कि वो पुलिस वाला उस टाइम पे आपके लिए राउटर का काम करेगा, क्योंकि आप एक डेटा हो जिसे मूव करना है फ्रॉम साहागंज टू जौनपुर। अब साहागंज से जौनपुर अगर आपको जाना है तो यू डोंट नो अबाउट द ईस्टर्न एरिया, आपको साहागंज और जौनपुर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपके लिए वो जो पुलिस वाला है वो एज अ राउटर बिहेव करेगा, क्योंकि वो आपको बेस्ट पाथ बताएगा कि यहाँ पे क्रॉसिंग बंद है, तो आप यहाँ से अगर नहीं जा सकते हैं तो आप पीछे गांव में से कहीं से मूव करके चले जाइए, यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है जो अंदर अंदर जाता है, वहाँ मूव करके चले जाइए। तो राउटर का काम क्या होता है? बेस्ट पाथ बताना डेटा के मूवमेंट के लिए, ताकि डेटा कहीं पर रुके नहीं। ओके। रिपीटर जो है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक अ एम्पलीफायर। Basically we know about the amplifier. Amplifier is used to boost the signal of voices. समझ में आया? जो आपके घर पे आपके घर पे फंक्शंस होते होंगे बहुत सारे, जिसमें आप बहुत मस्त तरीके से नाचते हैं, नागिन एनाकोंडा डांस करते हैं। उस नागिन और एनाकोंडा डांस निकालने के लिए जो डीजे बजता है, उस डीजे में एक एम्पलीफायर लगाया जाता है। द यूज़ ऑफ एम्पलीफायर इज़, जो आपके मोबाइल में एक सॉन्ग है, जो कि आपके मोबाइल की सॉन्ग के वॉइस की क्वालिटी कितनी कम होती है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि अगर मोबाइल में सॉन्ग बज रहा है आप शायद डांस नहीं करेंगे, बट डीजे पे सॉन्ग बजने लगता है तो हम डांस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो साउंड मेरे मोबाइल में आ रहा था उसका सिग्नल बहुत ज़्यादा लो था, मुझे उसको हाई सिग्नल में कन्वर्ट करना था। दैट्स वाई आई नीड अ एम्पलीफायर जो कि मेरे स्मॉल सिग्नल्स को बिग सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। यही काम रिपीटर का होता है। जब आपके नेटवर्क की जो बिट्स होती है, जो स्पीड होती है, वो कम हो जाती है, तो उसे इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नेटवर्क, रिपीटर इज यूज्ड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एम्पलीफायर। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट वन इज स्विचेस। अगेन टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर होम। आपके घर में स्विचेस लगे होते हैं, जिसका काम क्या होता है? ऐसे कुछ इस टाइप के स्विचेस लगे होते हैं जिन्हें हम लोग ऑन और ऑफ करते हैं। यानी कहीं ना कहीं डेटा को आगे बढ़ाने के लिए स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ द पोर्ट टू मूव द डेटा फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। बहुत सारी डिवाइसेस को अगर हमें डेटा को, जैसे आपके घर में है, आपके घर में एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, एंड देयर आर सो मेनी स्विचेस अवेलेबल। फर्स्ट स्विच फॉर फैन, सेकेंड स्विच इज फॉर ट्यूबलाइट, थर्ड स्विच इज फॉर cooler, fourth switch is for nothing. Okay, so these switches are used for using the devices for going the data in these devices. इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं ताकि डेटा उन डिवाइसेस तक पहुंच सके। जैसे फैन है, फैन का रिक्वायर्ड डेटा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी को भेजने का काम कौन करते हैं? स्विचेस करते हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कि स्विचेस आर द पोर्ट। एक ऐसे पोर्ट होते हैं जो डिवाइसेस को जोड़ने का काम करते हैं ताकि डेटा उन तक प्रॉपर पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट वन ब्रिजेस। चलिए ब्रिजेस की हम लोग बात करें तो ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर नेटवर्क ट्रैफिकिंग। नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक। अगेन गो टू द रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप लोग जब शहर में मूव कर रहे होते हो तो आप लोगों ने देखा होगा शहर में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए गए हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो ये बीबीगंज की क्रॉसिंग है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, क्रॉसिंग अगर बंद हो जाती है तो क्या होता है? ट्रैफिक हो जाता है बहुत सारा। देयर आर सो मेनी पीपल्स आर गेट इन द लाइन विच मे बी इन कार्स, मोटरसाइकिल्स, बाय ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा। ओके, तो इसका इलाज क्या है कि क्रॉसिंग भी बंद हो, नीचे ट्रैफिक भी लगा हो, पर ट्रैफिक रुके नहीं, डेटा मूव करता रहे। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर एक ब्रिज बना देंगे। हम लोग नहीं, मतलब गवर्नमेंट बना दे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट पे उस पर ब्रिज बना दिया तो क्या होगा? आपका जो ट्रैफिक है सॉरी, आपका जो ट्रैफिक है वो स्टॉप नहीं होगा।
जो डेटा है वो मूव करता रहेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जस्ट लाइक दैट ब्रिजेस इन द नेटवर्किंग सिस्टम, ब्रिजेस आर यूज्ड टू मूव द डेटा फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन टू अनदर लोकेशन। समझ में आया? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक अगर हमें डेटा को मूव कराना है बिना नेटवर्क ट्रैफिकिंग के, तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रिजेस बना लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे व्हाट्सएप पे एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को ही हम लोग डेटा भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्टैक्ट से उस कॉन्टैक्ट तक एक ब्रिज बना हुआ है, बीच में उसे कोई भी चेक नहीं करेगा, बीच में उसे कोई भी नहीं रोकेगा, बीच में कोई बैरियर नहीं आएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट वन, हब। हब इज द कलेक्शन ऑफ स्विचेस। ठीक है, जो एक तरीके से आपका बोर्ड होता है घर में, अगर आपने देखा होगा उसमें मल्टीपल स्विचेस लगे होते हैं ना, तो वो आपका एक हब होता है जिसमें आप बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। स्विच आपका एक सिंगल पोर्ट होता है जिसमें आपकी एक ही डिवाइस जुड़ती है। जो हब होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट बने होते हैं। ठीक है, दीज पोर्ट्स आर कॉल्ड स्विचेस। सो यू कैन से द कलेक्शन ऑफ स्विचेस इज कॉल्ड हब। क्लियर? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दीज टू डिवाइसेस आर यूज्ड for connecting to the devices with the network only. Clear? Okay, last one, gateways. चलिए एक छोटा सा सवाल, जो गेटवे ऑफ इंडिया है which is situated in the Mumbai, why it is famous? ये फेमस क्यों है गेटवे ऑफ इंडिया? आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो बता देता हूं। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो एक ऐसी जगह सिचुएटेड है जो कि आपके दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ता है। एक तरफ आपकी नदी है या कह सकते हैं समुंदर है, सी है, और दूसरी तरफ आपका रोड है। दोनों ही आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, पर इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? इस गेटवे ऑफ इंडिया ने। जस्ट लाइक दैट कि गेटवे को जोड़ने के लिए, दो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स को जोड़ने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बना है, वैसे ही दो अलग अलग नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क ऐड, ओके। सो दो अलग अलग नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ने के लिए, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें, ऑलवेज गेटवेज यूज्ड। क्लियर? अलग अलग नेटवर्क अब कैसे, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, ईबे से, सो मेनी साइट्स आर अवेलेबल विच इज कॉल्ड द ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स का मतलब समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ई कॉमर्स साइट जो आपकी फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है या फिर ईबे है, तो उससे जब आप लोग शॉपिंग कंप्लीट कर देते हैं, आप लोग अपने एक प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं, व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट? यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो हाउ इट इज पॉसिबल? देयर आर 3 ऑप्शंस, 3 और 4 ऑप्शन। फर्स्ट वन इज भीम यूपीआई, सेकंड वन डेबिट और क्रेडिट कार्ड, थर्ड वन कैश ऑन डिलीवरी, फोर्थ वन आपके वॉलेट में पैसा हो। वॉलेट जो कि आपका अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट का एक वॉलेट होता है। क्लियर? अब आपने एक चीज गौर की, जो फ्लिपकार्ट साइट है वो एक अलग नेटवर्क है, और आपकी जो बैंक साइट है जिससे आप पेमेंट करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, वो एक अलग नेटवर्क है। दोनों का दोनों एक ही नेटवर्क पे या एक गेटवे पे आके काम करते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करते हैं, और वही प्लेटफॉर्म आपका गेटवे कहलाता है। बात समझ में आई? सेकेंड एग्जाम्पल, ऑनलाइन टिकट जो वो आप लोग बुक करते हैं, तो जो टिकट होता है वो तो रेलवे की साइट होती है, और आप लोग जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो बैंक की साइट होती है। क्लियर? ये दोनों अलग अलग नेटवर्क को जो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, उसी को हम लोग गेटवे कहते हैं। क्लियर है? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आई होप इन सारे के सारे पॉइंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। एक मैं आप सभी को ये जो रिवाइज करवा रहा हूँ, प्लीज़ इसको गौर से रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में तो है ही है, आपके फ्यूचर में भी यूज़ आने वाले टर्म्स हैं। आप लोग अगर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उसमें भी जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है ना, वो इसी बेसिक टॉपिक से आएगा। दैट्स वाई प्लीज़ यूज़ दिस बेनिफिट वीडियोज़ फॉर योर फ्यूचर। सो दिस इज इट फॉर टुडे,
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आई होप कोई अगर मिस्टेक हो तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, ताकि मैं अपने और वीडियोज़ में और भी अच्छी चीज़ें ला सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।